नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी और आज युद्ध में ऑपरेशन सिंदूर की एक बार फिर बात होगी क्योंकि आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एयरफोर्स चीफ ने जो बड़े खुलासे किए हैं, जो बड़े बड़े दावे किए हैं, जो डिटेल्स दी हैं, वो पूरी दुनिया को बताने के लिए काफी हैं हिंदुस्तान की इस अभेद शक्ति के बारे में। हिंदुस्तान ने कैसे पाकिस्तान के अंदर तक घुस कर मारा और बहुत बहुत मारा। अमेरिका के फाइटर जेट्स और चीन के जेट्स भी हिंदुस्तान के प्रहार से खुद को बचा नहीं सके। एयरफोर्स चीफ ने आज ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वालों को तफसील से, डिटेल में, लाउड एंड क्लियर समझाया, एक एक किल की डिटेल दी, खुलकर दी, स्पेसिफिकेशन के साथ दी। यह भी कह दिया बालाकोट के सबूत मांगे गए थे, इसलिए इस बार ऑपरेशन सिंदूर के सबूत भी लाए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे हमारे फाइटर जेट्स ने ऑफेंसिव ऑपरेशन में पाकिस्तान के 5 जेट्स और 1 एयरक्राफ्ट को मार गिराया, कैसे S-400 गेम चेंजर साबित हुआ और उसने वो काम कर दिखाया जो दुनिया के किसी युद्ध में आज तक नहीं हुआ। आज एयरफोर्स चीफ ने डंके की चोट पर हिंदुस्तान के भीतर ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वालों को और दुनिया के बड़े बड़े 30 मारखा देशों को जो बिग डैडी बनते हैं, भारत की ताकत अच्छे से समझाती है। जरा सुनिए चीफ ने क्या कहा, फिर तफसील से आज बात होगी क्योंकि बात बहुत मजेदार होगी। And I'm sure there were some aircraft inside which have got damaged there. So if I can just sum it up, we were able to get there at least 2 command and control centers in like Murid and Chaklala that I have shown you one of the pictures. At least 6 radars, some of them big, some of them small. 2 SAGW system that is in Lahore and Okara. Then of course runway at Sargodha and Rahimia Khan. 3 hangars that we attacked. One was, of course, Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least 1 AEWNC in that AEWC hangar, and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. तो जमीन से आसमान तक अब तक की सबसे बड़ी रिकॉर्डेड किल की है हिंदुस्तान की शानदार एयरफोर्स ने। तो जोरदार तालियां हमारी फौज के लिए। और आपको बता दें कि बाकायदा पूरी डिटेल दी है कि हवा में उड़ता जहाज था या फिर हैंगर में रिपेयर के लिए आया जहाज था, चीन से मिला जहाज था या अमेरिका से मिला जहाज था, हश्र सबका हमारी एयरफोर्स ने एक सा ही किया। कहां कहां किस किस को कैसे किल किया, डिटेल दी। लेकिन चीफ यही नहीं रुके, आज हर सवाल उठाने वाले को जवाब दिया और करारा जवाब दिया। भारत जब जीत रहा था तो ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका गया, आगे हमला क्यों नहीं किया, यह भी चीफ ने बहुत तफसील से समझाया है। Our objective was very clear. Our objective was to teach the terrorists a lesson that they will think twice before doing something, or they know what kind of price they can pay. And once we have achieved those objectives, we should look for all windows of opportunity to stop that, rather than just continue. We were actually on a song that night. I hear from so many people. I don't want to say that, but some people very close to me have said, "Aur marna tha." I'm telling you that. But can we continue to be at war? No. Why should we be at war when we can avoid it or we can stop it? That is my way of looking at it. I think nation has taken a very, very good decision, and we were a part of that decision, but it was cannot be taken at our level. It has been taken at much higher level, but it was a good decision. Now we have to make sure that we remain steadfast, that should we need to again do something, we are not found wanting. But what to do, that call will be taken at much higher level. फिर से हिमाकत करोगे तो करारा जवाब मिलेगा, उसके लिए तैयारी पूरी है। लेकिन युद्ध रोकना क्यों सही था, जरूरी था, यह भी चीफ ने आज समझाया।
आज बड़ा सुकून मिल रहा है हर हिंदुस्तानी को कि भाई दुश्मन को मारा पता था, सवाल उठ रहे थे तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा था। आज उसकी भी डिटेलिंग हो गई कि दुश्मन को मारा, बहुत जोरदार मारा, घर में घुसकर मारा और क्या क्या नुकसान किया उसकी फेहरिस्त है सबूतों के साथ। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वैभव सिंह हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ दीपक वोरा जी हैं, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ एनडी दुबे जी हैं, पूर्व डीआईजी बीएसएफ, और एयर कमोडोर एएस बहल साहब हमारे साथ हैं। जोरदार तालियों के साथ इन सभी का स्वागत करते हैं। बहल साहब, बहुत मारा, बहुत मारा और बहुत जोरदार मारा, डिटेल भी दे दी है। आज तो आप भी डिटेल में बताइए हमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले मारेंगे, फिर बताएंगे, फिर बात करेंगे, और यही चीज आज से शुरू हुआ है। मैं आपसे पूछता हूं, हाउस योर जोश? ये हाई देखो, एक डिप्लोमेट का जोश बहुत हाई है और आपका कैसे नहीं है? हाउस योर जोश? हाँ, अब लगाना कि हम हिंदुस्तानी हैं। वो सुना नहीं, वो 2.5 किलो का हाथ, तो हमारे तो हर एक के 5-5 किलो के हाथ है। और वही चीज आज 10 किलो का, और वही चीज आज एयर चीफ ने भी बोली। इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको, मेरे साथ तो फ्लाई भी कर चुके हैं। ये एयर चीफ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधी बात करते हैं, ये बहुत फ्रैंक बात करते हैं। आपने इनके बारे में पहले भी सुना होगा, और कोई शुगर कोट नहीं करते, जो भी है सच्चा सच्चा बोल देते हैं। और अगर इन्होंने कहा है कि हमने 5 जहाज प्लस 1 AWC एयरक्राफ्ट हवा में मारा है, तो वो मिनिमम मारा है। हो सकता है 1-2 और डर के गिर गए हो। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने कही, और उसको थोड़ा सा तफसील से आज डिस्कस करने वाली चीज है। जैसे कि पेनाज जी बोल रहे हैं, और वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, एंकर है, और वो जानते हैं कि क्या है। सबसे पहले चीज आती है कि हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी वो कैसी है। हम गए, हमें 9 टेरर टारगेट्स में बताया गया था कि आतंकी हैं, उसमें 9 के 9 को प्रिसिशन अटैक से, असली इंटेलिजेंस से, एक्यूरेट मिनिमम कोलेटरल डैमेज। मिनिमम कोलेटरल डैमेज का क्या मतलब है कि आसपास की बिल्डिंग को पता भी नहीं चला और यह तबाह और बर्बाद हो गई। यानी कि कोई मिलिट्री या सिविल टारगेट को हमने नहीं किया। यहां तक कि 100 आतंकी मार दिए, और वो जब मरे तो उनका जो सरंगना था, जैश ए मोहम्मद का लीडर मसूद अजहर क्या कहता है, इससे तो अच्छा अल्लाह मुझे उठा लो। जरूर उठाएंगे, चिंता मत करो, तुम्हारा भी नंबर आएगा। यह तो हुई ऑफेंसिव कैपेबिलिटी। हम नहीं चाहते थे ये लड़ाई बढ़ाएं, हमने तो अपना ऑब्जेक्टिव, जैसे कि अभी एयर चीफ ने कहा था, हमारा ऑब्जेक्टिव था लेसन सिखाना। किसको? आतंकियों को। हमने सिखाया, एक्यूरेटली सिखाया, और बड़े कैलिब्रेटेड तरीके से सिखाया। अब आती है हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी, तो आपने देखी डिफेंसिव कैपेबिलिटी। पाकिस्तान ने 400 एक दिन, 200 से ऊपर दूसरे दिन ड्रोन्स के साथ हमला किया, मिसाइल्स के साथ हमला किया। आपने सुना होगा फाता, अब्दाली मिसाइल्स, उनके साथ हमला किया। लेकिन हमने क्या किया, हमारी एयर डिफेंस इतनी अच्छी थी, हमारी टेरिटरी के अंदर से रहते हुए हमारी S-400 सिस्टम ने पाकिस्तान के 5 जहाज गिरा दिए, और 1 एयरबोर्न और अर्ली वार्निंग सिस्टम जहाज गिरा दिया। वो क्या होता है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम? वो होता है, उसके जहाज के ऊपर एक रेडार लगा होता है, उससे दूसरे की एनिमी की टेरिटरी में आप बहुत दूर तक देख सकते हो। बहुत बड़ी कैपेबिलिटी होती है पाकिस्तान के पास, वैसे जहाज बहुत कम है। उसको एक को अगर हवा में उड़ाया तो समझो $100 मिलियन का उसका एक जहाज का हमने नुकसान कर दिया है, और उनकी कैपेबिलिटी में कमी कर दी। उसके बाद फिर जो हमने जवाब दिया, 6 रेडार उनके उड़ा दिए। और चाहे वो कहीं के भी रेडार हो, बड़े बड़े रेडार हो, छोटे रेडार हो, जैसे वो कह रहे थे, नाम मैं नहीं लूंगा, कोई फायदा नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। LY-80, NTPS 43, HQ-9, ये वाले थे, इनको उड़ाया। लाहौर से लेके हमने शक्कर तक एक ऐसी बेल्ट क्रिएट कर दी कि अब अगर हम चाहते तो हमारे अंदर जहाज चले आते, वो कुछ नहीं कर सकते थे। तब भी हमने टेरिटरी, अपनी टेरिटरी से ही मिसाइल्स छोड़ी, चाहे वो रफाल से छोड़ी, चाहे वो हमने छोड़ी सुखोई 30 से, चाहे वो स्काल्प थी, चाहे वो ब्रह्मस थी। हमने उनके 11 एयर बेसेस को तबाह और बर्बाद कर दिया। 90 घंटे के अंदर हमने पाकिस्तान को घुटनों पे लेके आ गए।
कौन सा था? नूर खान, स्कार्डू। नूर खान उनका पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप का अड्डा है और साथ ही में उनका न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है। हिल गया था पूरा पाकिस्तान। और उसके बाद नीचे चले जाए, मुरीद हो जो उन्होंने नाम लिए थे, सरगोदा, जकोवाबाद, शक्कर और भुलारी के अंदर एक और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का जहाज रिपेयर पे था, उसको भी उड़ा दिया। खैर उनके 5-6 जो अधिकारी थे वो बेचारे मारे गए जो सर्विसिंग कर रहे थे। और जकोवाबाद में और F-16 गिरे। अगर टोटल नंबर देके 9। जब ट्रंप ने कहा था कि 5 जहाज गिरे हैं, वो शायद पाकिस्तान की बात कर रहा था, भारत की नहीं कर रहा था। F-16 सप्लाई उन्होंने किए थे तो काउंट कर रहे होंगे ना सर? अच्छे बिल्कुल काउंट कर रहे थे। तो अगर आप काउंट करें, अभी जो चीफ ने बोला है 9 जहाज तो हमने उनको उड़ा दिए। सारे पूछते हैं भारत के अंदर हमारे कितने गिरे, मैं पूछता हूं उनसे, ये क्यों नहीं पूछते कि हमने कितने गिराए? हमने उनके 9 जहाज को मार दिया। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जो हमारी एयर डिफेंस थी, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस थी, वो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस जो आर्मी के रेडार्स, एयरफोर्स के रेडार्स को मिलकर बनाई गई थी। आकाश तीर भारत का बना हुआ सिस्टम, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भारत का बना हुआ, और S-400 जो ब्रह्मास्त्र था जिसने इतने सारे जहाज को शूट डाउन किया, इतनों को बर्बाद किया। तो हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम एकदम कवच की तरह था, वो लोग उसको भेद नहीं पाए। इतना डर बढ़ गया था पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, जिसे फिजाया कहते हैं, जो अपनी एयरफोर्स में बहुत मान रखते हैं और जिनकी एयर डिफेंस को कहा गया है कि इम्प्रेग्नेबल है, उसको भी हमने भेदा। हमारी मिसाइल्स ने, हमारे बॉम्ब्स ने भारत में रहते हुए, और साथ में पाकिस्तान एयरफोर्स ने उड़ने से मना कर दिया था। उड़ ही नहीं रहे थे, डर रहे थे उड़ेंगे तो भारत गिराएगा। और एंड में एक चीज कहूंगा, वो इंटीग्रेशन जो हमारी आर्म फोर्सेस में थी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर, अगर वही इंटीग्रेशन अगर हमारी पॉलिटिकल साइड पे होती, जिन्होंने प्रश्न उठाते थे कि कितने गिरे सबूत दिखाओ, जिन्होंने प्रश्न उठाते थे कि सीज फायर हमने क्यों किया, मैं कहता हूं कि अगर हम सीज फायर नहीं करते तो हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो गया था। एक बार जोर से तालियां बनाए हमारी सशस्त्र सेना के लिए। वैभव सर ने जहां पॉलिटिक्स पे बात छोड़ी है, उसी को हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं आपसे। आज राहुल, गोगोई, अखिलेश, तेजस्वी सब जो पूछ रहे थे कितने गिरे, किसके गिरे, कहां गिरे, सबूत दो, वॉर क्यों रोक दी, क्यों नहीं पीओके ले लिया, सबको जवाब मिल गया। अब शांत बैठेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता है शांत बैठेंगे। वो राजनीति है और राजनीति का सिलसिला जो है हमारे देश में दुर्भाग्य से ऐसे ही चलता है। मतलब देश के हित में भी राजनीति करेंगे? कब नहीं की है, मैं तो ये जानना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो जो सरकार है, सरकार ने बड़ा दिल दिखाया और सरकार ने हर पार्टी से लोगों को भेजा दुनिया भर में कि भाई आप जाइए अलग अलग देशों में और बात कीजिए। सभी को पता है कि ओवैसी जैसे लोग जो कि सरकार से बिल्कुल ही 180 डिग्री ऑपोजिट खड़े होते हैं हर मुद्दे के ऊपर, उनको भी एक डेलीगेशन में डाला, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को डाला, बाकी ऑपोजिशन की पार्टीज के लीडर्स को डाला। तो सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किया था कि इनको सबको इंटीग्रेट किया, जैसा सरकार रहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट आर्म्ड फोर्सेस जो हुआ है इस पूरे ऑपरेशन में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सरकार ने भी प्रयास किया। लेकिन अगर वो खुद शामिल नहीं होना चाहते, और मैं आपको बता रहा हूं राहुल गांधी खुद इस मामले के ऊपर अपनी पार्टी में अलग थलग पड़े हुए हैं। जैसे आपको पता होगा, चौकीदार चोर है का जब नारा दिया था उन्होंने, उस समय भी पार्टी के लोग उसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन अगर लीडर ही बोल रहा है तो क्या कर सकते हैं। राफेल की खरीदारी के ऊपर जब उन्होंने सवाल उठाए थे और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उस पर भी वो अपनी पार्टी में अलग थलग पड़े हुए थे। इस मुद्दे पे भी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो उनके सपोर्टर हैं, लीडर्स हैं, जो उनका कार्यकर्ता है, वो उनके साथ नहीं खड़ा इस मुद्दे पे, क्योंकि वो जानते हैं कि जहां पे बात सेनाओं की आती है, देश की सुरक्षा की आती है, वहां पे आपको सरकार के साथ खड़ा होना होता है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं इस देश में जिसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आपको याद हो, जब कारगिल की वॉर चल रही थी, तो कारगिल की वॉर की समय जो है सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो एक पेज पे थी कि नहीं भाई ये हमारे देश के साथ के ऊपर हमला हुआ है और हम इस पे एक पेज पे हैं, उस पे कोई नहीं हुआ। 1971 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई में इस देश में जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स थे वो सारे के सारे इंदिरा गांधी के साथ खड़े थे, 65 की लड़ाई में भी साथ खड़े। लेकिन ये पहली बार हो रहा है इस देश में, और राहुल गांधी को मैं कामना करता हूं ईश्वर सद्बुद्धि दें कि इस तरह के मुद्दों के ऊपर वो, अगर एयरफोर्स चीफ ने कह दिया, अगर आप उसके ऊपर भी अगर वो राजनीति करेंगे, अगर करते हैं आगे इसके आगे, तो इस देश का इतिहास रहा है कि नेताओं का अपमान इस देश ने हमेशा माफ किया है, सेनाओं का अपमान इस देश की जनता ने कभी माफ नहीं किया है। और अगर आपको याद हो तो 2014 में
कारगिल की वॉर के ऊपर एक कॉफर स्कैम बनाने का प्रयास किया गया था और कफन चोर और इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया था, तो उस पे भी जनता बहुत नाराज हुई थी और उसकी कीमत जो है लोगों को चुकानी पड़ी थी जो इस तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं हमेशा ये मानता हूं कि सशस्त्र सेनाओं की जहां बात आती है, आप देखिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। बच्चा बिना समझाए बुझाए मनाए जो है वो रोटी भी नहीं खाता, ठीक है, और उसको भी बहुत मान मनोबल करनी पड़ती है कुछ काम कराने के लिए, लेकिन जब वो सड़क पे फौज की गाड़ी देखता है तो वही बच्चा जो है वो सल्यूट मार देता है। उसको किसी ने नहीं सिखाया होता, उसको घर में कोई ट्रेनिंग नहीं देता सल्यूट मारने की, लेकिन आप अक्सर फोटो देखती है, वीडियोस देखती हैं कि भाई फौज की गाड़ियां जा रही हैं और बच्चे सल्यूट मार रहे हैं। किसने सिखाया? तो ये जो सम्मान है, ये जो ग्रेटिट्यूड है फौजी हमारे देश के फौजियों के लिए, वो इस देश की जनता के अंदर है। तो अगर राहुल गांधी अगर राजनीति करेंगे आज के बाद, अगर इसके ऊपर सवाल उठाएंगे कि हमारे कितने गिरे और हमने वॉर क्यों रोक दी, और हर सारे सवालों का जवाब एयरफोर्स चीफ ने दिया है, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो बाकी रह गया है। अगर उन सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं तो अगर आप राजनीति करेंगे तो उसकी राजनीतिक कीमत राहुल गांधी को चुकानी पड़ेगी। तो यानी फौज के नाम पर, और जब खुद एयर चीफ बता रहे हैं कितना मारा, कहां मारा, कैसे मारा, भाई जब इतनी डिटेल मिल गई है तो अब शायद विरोधी जो हैं वो शांत बैठेंगे, क्योंकि बयान जो है वो राजनीतिक नहीं बल्कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ से आया है। खैर देखते हैं, इसके लिए कल तक का इंतजार अभी थोड़ा शाम तक का कर लेते हैं। दुबे सर, जब देश की सेना खुलकर डिटेलिंग देती है अपने किल के बारे में, ये मारा ये मारा ये मारा, चुप नहीं बैठे हैं, छिपा नहीं रहे हैं, डंके की चोट पे प्रूफ के साथ बता रहे हैं और बार बार बता रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं, तो हमारी फौज का कितना मनोबल हाई हो जाता है उस वक्त? फौज का मनोबल इससे प्रभावित होता है। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि फौज ये सोचती है कि कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, यानी जितनी फोर्स में रेजिमेंट बनी है, जिसका एक सिंबल है, एक कम्युनिटी, एक सोशल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि वो हमारी आइडेंटिटी है, इस आधार पर बनी हुई पूरी फौज जब देश की रक्षा करना होता है तो वो सब एक साथ लड़ती है। लेकिन इसी तरह से जितने पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं वो ऐसे क्राइसिस के मोमेंट पर एक साथ क्यों नहीं होते, ये उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आता है। पहली बात यह है। दूसरा, आज हम यहां बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं और अखाल के पहाड़ी कुलगांव में आज 8वां दिन हो गया इनकाउंटर हो रहा है और जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हो चुके। आज मॉर्निंग की बात है ये जी। आज उनका पार्थिव शरीर निकाला जा रहा है। आप उनसे सोचिए कि वो जहां बैठे होंगे और वो इस तरह के पॉलिटिकल डिस्कोर्स की जब बात सुनते हैं तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि क्या वो जो जिस शहादत का वो हिस्सा है, जब वो देश की रक्षा करते हैं तो उनके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। बड़ा मैं आपको सच्चाई के साथ बताता हूं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, क्योंकि हम लोगों ने इतना लंबा सेवा में बहुत सारे पॉलिटिकल रिजीम के तहत हम लोगों ने काम किया है, क्योंकि वो हमारा कंसिडरेशन नहीं होता। लेकिन और अगली बात है कि इस तरह के इंपॉर्टेंट मुद्दों पर फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में जो बयान दिया जा रहा है, और मिनिस्टर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा है, तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं, उसके ऊपर सीडीएस हैं, उसके बाद रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, उनके टेबल से जो बयान आता है, क्या हमारे पास कोई चारा है उसकी ऑथेंटिसिटी को क्वेश्चन करने का? क्या यह सही नहीं है कि हमें उसे एज इट इज लेना चाहिए? वही भारत का ऑफिशियल बयान है, वही भारतवर्ष का बयान है, वही हमारा पक्ष है, क्योंकि राष्ट्र रक्षा का सवाल है। ये रक्षा किसी पार्टी के लिए नहीं हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर किसी पार्टी के लिए नहीं किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान जो हमारा पुश्तैनी एनिमी है 1947 से, हमने 4 वार लड़े हैं, इतने ऑपरेशंस किए हैं नए मिलेनियम में उसके आतंकवाद के खिलाफ, जिसने 22 अप्रैल को हमारे पहलगांव बाइसरन में इतना बड़ा कांड किया, उसके रिस्पांस के अगेंस्ट जो है ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। इन चीजों पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इन चीजों पर हम अगले से ऊपर हैं, हम अगले की कमी निकाल रहे हैं, और इतना बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दे पर ऐसे छोटे बयान या ऐसे बयान जो टोटली कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसका फायदा उठा सकता है, हमें नहीं देना चाहिए। अपने चैनलों पे चला के बाकायदा प्रोपेगेंडा उसको पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है। हम ही कह रहे हैं कि क्या सबूत है कि ये किलर्स पाकिस्तान के थे? ऐसा बयान देना मतलब उसके रिस्पांस में जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, आप उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अभी तो उन किलर्स के पाकिस्तान के वोटर आईडी भी मिल चुके, उनके माँ बाप के भी पते मिल गए, उनके ऑमिनेशन कार्टेजेस भी मैच हो गए,
उनके चॉकलेट के भी सबूत मिल गए, उनके कन्वर्सेशन के पूरे फुटप्रिंट्स मिल गए, उनकी पूरी आइडेंटिटी स्टेब्लिश हो गई। और जो 2 OGW जिन्होंने बायसरान के टेररिस्ट को उनको गाइड किया था, एक रात पहले ढोक में 21 अप्रैल को उनके यहाँ आके वो ठहरे थे, खाना पीना खाए, उनके यहाँ पानी लिया, मिर्च मसाले लिए और वो जंगल में गए, वो आपके कब्जे में है। उन्होंने पहचान की, उन्होंने उसको डिटेक्ट किया, इंडिकेट किया। इन सारे सबूतों के बाद पॉलिटिकल कंसिडरेशन की वजह से हम ये सारे सबूत को किनारे रख के एक नई धारा चलाएं तो निश्चित रूप से इससे पाकिस्तान का मनोबल बढ़ता है और हमारा पक्ष कहीं न कहीं डाइल्यूट होता है। इस पे राजनीति, मेरा तो यही सलाह है, कभी नहीं किया जाना चाहिए। तो राजनीति रुकती नहीं है, वो किसी ना किसी तरह से अपना रास्ता खोल लेती है करने के लिए, तो देखना होगा। लेकिन आज चीफ ऑफ एयर स्टाफ की इस डिटेलिंग के बाद कम से कम कितने गिरे, किसके गिरे, कहां गिरे, ये वाला कंफ्यूजन जो था ना कि 5 किसके गिरे, ट्रंप ने तो एक शगुफा छोड़ दिया था, उसके बाद जो सवाल उठने लगे थे उनको शांति जरूर मिली होगी। यहां पर वोरा सर, अब समझ में आ रहा है कुछ कुछ के ट्रंप साहब जो हैं वो इतने ज्यादा बौखलाए हुए क्यों हैं। जब एयर चीफ ने पढ़ा ना F-16, सरगोदा, रहीम यार खान, तो ये लिस्ट अपने आप में बता रही है ट्रंप साहब की टेंशन। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जब आपके साथ होता हूं आपके चैनल पर, थैंक यू वेरी मच। लगता मैं अपने घर लौट आया हूं, थैंक यू वेरी मच। मशहूर है और आप तो बेमिसाल हैं। अभी आपने सुना हमारे 3 सहयोगी ने क्या कहा है। एक चीज छोटी सी जल्दी से बता देता हूं आपको। अभी आपने जिक्र किया था घर में घुस के मारने का। आपको याद होगा कि 6 साल पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पतन गुजरात में कहा था हमारा सिद्धांत है हम घर में घुस के मारेंगे। मैं पूछना चाहता था उनसे कि साहब हमारा सिद्धांत तो था यहाँ तमाचा मारो तो हम कहेंगे जी यहाँ पे भी मार दो, पेट में लात मार कहेंगे पीठ में भी मार दो, ये कब से है। तो इस बार महाकुंभ में एक ज्ञानी ध्यानी महाराज से मैंने पूछा महाराज ये क्या बोल रहा था, तो बोले आपको याद है रामायण। मैंने कहा हाँ। हनुमान ने क्या किया था मैंने कहा महल छोड़ने से पहले उस नगरी में आग लगा दी थी। बोले कई हजार साल पहले हमने घर में घुस के मारा था। और अब बहल साहब जैसे लोगों ने, एयर कॉमोडोर साहब के सहयोगियों ने फिर से घर में घुस के मारा है। ये हमने नहीं बताया, एयर चीफ साहब बहुत सोच समझ के साथ उन्होंने बातचीत की। ये नहीं बताया कौन से जहाज हमने मार गिराए थे। मेरा मानना है, सही है गलत है मुझे पता नहीं, वो चीनी एयरक्राफ्ट थे, फाइटर प्लेन्स, वो भी नष्ट हो गए, इसलिए चीनी भी बहुत नाराज हैं। और मैकडोनल्ड ट्रंप ही क्या नाम है उसका, हाँ वही डॉलर ट्रंप नहीं जो भी है, वो अब नाराज इसलिए है कि उसके जहाज बर्बाद हो गए, जमीन पे खड़े हुए थे। बड़ी बड़ी बातें करता था, F-16 तो चंद्रमा पर जाके ये करेगा वो करेगा। और सबसे ज्यादा पता है कौन डरा है पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, उसका नाम मैं आपको बताता हूं क्या है, मनूस नजर नहीं, ओहो मसूद अजहर, वही है ना उसका नाम। हाँ वो तो आर्मी चीफ है, फौज तो उसकी नौकरी करती है, वो फौज की नौकरी नहीं करता है। तो वो जो बेवकूफ है सब डरे पड़े हैं। अब मैम फाइनली मैं आपको बता देता हूं, मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में। ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि हमारी फौज और हमारी डिप्लोमेटिक एस्टैब्लिशमेंट किस तरह से साथ काम कर रहे हैं। आपको एक चीज बता देता हूं, वो मुज्जू फुज्जू है ना मॉलडीव्स वाला, कितनी गाली हमको देता था, और अब भारत आके हमारे गुन गाता है कि हे जी आप तो मेरे डार्लिंग हैं। एक अच्छा कब से डार्लिंग हुए, पिछले साल तक तो आप गाली गलौज करते थे। ये आपकी कूटनीति की जीत है, भरोसा करिए हमारे ऊपर, हम चाणक्य की संतान हैं, हम जानते हैं डिप्लोमेसी क्या होती है। मैं बस यही बनाना चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप साहब आपको डिप्लोमेसी नहीं आती, हमारा एक बहुत अच्छा सुषमा स्वराज फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट है, आइए हम आपको पढ़ाएंगे, मैं आपको सिखाऊंगा डिप्लोमेसी क्या होती है। एक बार फिर ताली बजा दीजिए, अच्छा लगेगा। चलिए आज जोश जो है ना वो डबल हाई है, क्योंकि जिस तरह से जो सवालों के बाद थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था ना कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कुछ छुपा रहे हैं, कहीं कुछ कमजोर तो नहीं पड़ गए थे, वो आज जब एयर चीफ ने एक एक डिटेल, एक एक पूरी लिस्ट पढ़कर सुनाई ना डिटेल में, और आप जब किल करते हैं तो अब तकनीक इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि उसके प्रूफ भी होते हैं। तो अब बहुत सारे सवाल भी यहां पर हैं हमारे ऑडियंस के बीच में। जी चलिए आप पूछिए, फिर उनका भी हाथ खड़ा था। जी जय हिंद, मैं दिल्ली से दिनेश त्यागी। दोनों फौजी भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ कि जो विपक्ष बोलता है, स्पेशली राहुल गांधी जो, तो उसका जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साइकोलॉजिकली कोई असर पड़ता है उनकी बातों का? और दूसरा क्वेश्चन है मेरा दीपक वोरा जी से कि जो पाकिस्तान का फाइनल इलाज क्या है, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप का इसके बारे में इसका क्या इलाज हो सकता है? ये 2 क्वेश्चन है मेरे। दुबे सर आप बताएंगे कि बहल सर आप बताएंगे? ये टफ क्वेश्चन है कि सीनियर ऑफिसर्स जब पॉलिटिशियन जैसे बयान देते हैं तो उनका माइंडसेट क्या होता है उसमें?
देखिए, मैं भी रहा हूं काफी साल, कई दशकों तक इंडियन एयरफोर्स में रहा हूं, और साथ में हमेशा अपनी जो लिंकेज होती है हमारी वॉर प्लान्स की, स्ट्रेटेजिक वॉर प्लान्स की, वो होती है पॉलिटिकल विल के साथ, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तभी एक बहुत बड़े फिलोसफर थे कार्ल वॉन क्लॉजविट्ज, जिन्होंने कहा था पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट इज द गोल एंड वॉर इज अ मींस ऑफ अचीविंग इट। तो इस बार पहली बार था कि हमारी पॉलिटिकल विल बहुत क्लियर थी, हमारी डिप्लोमेटिक विल बहुत क्लियर थी, हमारी सशस्त्र सेनाएं तैयार थी, अच्छी स्ट्रेटजी बना के हमने हमला किया, और रिजल्ट आपके सामने है कि 90 घंटे के अंदर एक देश जो है घुटनों पे आ गया। ये कभी नहीं हुआ, कोई एयरफोर्स, कोई आर्मी ने आज तक ये नहीं किया। ऐसे आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स जब सुनते हैं ऐसी बातें कि जहां पे उनके ऊपर प्रश्न उठाए जाते हैं, आपने बालाकोट किया था तो क्या उसमें 200 आतंकी मारे गए थे, आपने ये किया तो क्या आपके जहाज गिरे थे, आपने लड़ाई क्यों रोक दी? और जैसे कि हमारे चीफ ने बहुत क्लियरली बताया, बालाकोट का जो घोस्ट है, जो उसके भूत हैं, उसको हमने रेस्ट पे ला दिया। इस बार हमारे पास ड्रोन्स की भी पिक्चर थी, सैटेलाइट्स की भी पिक्चर थी, और वहां के पाकिस्तानी खुद वीडियोस बना के डाल रहे थे कि क्या कर दिया तुमने हमारा। आखिरी चीज मैं बताना चाहता हूं युद्ध को रोकने की, क्योंकि हम सब जब ये चल रहा था और जब पाकिस्तानियों को हम ठोक रहे थे, ये राइट वर्ड है शायद, हम उनको ठोक रहे थे, तो उस समय पे सबके दिल में था दिल मांगे मोर मोर। तो लेकिन जो जवाब उन्होंने दिया वो बिल्कुल सही है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं इसका। अभी गाजा देखा आपने, जहां पे युद्ध चल रहा है, 22 महीने हो गए इस युद्ध को। गाजा का टोटल साइज कितना है? 363 स्क्वायर किलोमीटर, और दिल्ली का कितना है? 1484 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि दिल्ली से 1/4 साइज है। 22 महीने हो गए वहां पे लड़ते हुए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो उतने एरिया को कंट्रोल नहीं कर पाई। अगर हम किसी भी युद्ध में घुसते हैं तो हमारा भी नुकसान होगा। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स, जो कि टेररिस्ट को लेसन सिखाना था, पूरे हो गए हैं, तो उसके बाद हमारा बिजनेस नहीं बनता। ये युग युद्ध का नहीं है, ये युग है साथ में डेवलपमेंट का। जय हिंद। जी वोरा सर, आपके लिए मैं भी जवाब सवाल देता था। हूं, मैं जवाब जी, देता हूं। जी। अभी इन्होंने कहा है ये दिल मांगे मोर, तो मैं फिर एक और उसमें जोड़ देता हूं कि दरवाजे को कुंडी लगाओ, कोई बाहर ना जाने पाए। क्यों ना जाने पाए? जिसने हमारी बात नहीं मानी जाके अपनी भैंस चराए। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आपने पाकिस्तान के बारे में पूछा। जब मैंने विदेश सेवा में कदम रखा था 1973 में, 74 साल की मेरी उम्र है। ये अलग बात है कि मैं अभी भी बहुत हैंडसम हूं, लेकिन उस समय क्या हुआ था जब मैं भर्ती हुआ, श्योर आप हैं। तो उस समय हमें बताया गया था कि पाकिस्तान की स्थिरता भारत के लिए बहुत जरूरी है। टोटल नॉनसेंस। इतने साल हो गए हैं, पाकिस्तान कहता है कि मेरे जीने का मकसद यही है कि मैं आपको तंग करूं। 4 टुकड़े होने वाले हैं, आप देख लीजिएगा साहब। ये सिंधु नदी का पानी जो हम बंद कर रहे हैं, भरोसा करिए हम पर, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। अगले साल के आखिर तक एक बूंद नहीं जाएगा, जो आपके लीडर्स ने कहा। फिर क्या होगा? ये सिंधु नदी जाती है खैबर पख्तूनख्वा, जहां पठान रहते हैं। माय फादर वाज अ पठान, मैं जानता हूं। उनको पानी नहीं मिलेगा, वो ठोकेंगे पंजाबियों को जो उनके नीचे हैं, जहां सिंधु जाती है। पंजाबी ठोकेंगे सिंधियों को, जो सबसे आखिर में है, जहां सिंधु नदी मर जाती है। वहां पे अपने आप गृह युद्ध शुरू हो जाएगा पानी के ऊपर। यह एक मास्टर स्ट्रोक है जो भारत ने किया है, जो आज के चाणक्य नरेंद्र मोदी ने किया है। और फाइनली आपका प्रश्न था कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैसे डील किया जाए। अमृतसर के छोले खिलाओ उसको सर, वो ठीक हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। अब वो अलास्का में कह रहा है कि मैं पुतिन्स्की से मिलूं, पुतिन्स्की नहीं, क्या नाम है उसका, वही जो भी है, उनसे मिलूंगा। ट्रंपिन्स्की पुतिन्स्की की मीटिंग होगी, और बेचारा बेगिंस्की यूक्रेन वाला क्या करेगा। सर ये आदमी है कि दिन में हर 15 मिनट में अपने बयान बदलता है। इसको कोई भी सीरियसली नहीं लेता। बस अब आप देखेंगे वहां का जो जुडिशियल सिस्टम है अमेरिका, वहां की कचहरी बहुत मजबूत है, हमारी कचहरियों की तरह। वो इसको मुझे लगता है उसको बाहर निकाल देंगे। इस आदमी को कहेंगे कि इसका भेजा फ्राई है, इसको राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए। आप देखते जाइए सर, अगले 2-3 हफ्ते के अंदर क्या होता है। तो हिंदुस्तान ने तो बता भी दिया है कि भाई ऐसा है कि हम आपकी सुनने वाले नहीं है, आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, ड्राई रिफ लगाते रहिए, हम उसका भी सोल्यूशन निकाल लेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रभात त्रिपाठी है, मैं दिल्ली के सकरपुर से हूँ। मेरा सवाल इस पैनल से ये है कि आज पूरी दुनिया युद्ध के इसमें भटक रही है।
भारत पाकिस्तान का अपना मसला है, गाजा में अलग, यूक्रेन और रशिया का अपना मसला है, चाइना और ताइवान का अपना मसला है, और इसमें ट्रंप साहब को नोबेल शांति पुरस्कार पाने का अपना मसला है। वही सारा मसला है। इस पे क्या क्लियर, बहुत सारी मसले हैं, इस पे पैनल का राय जानना चाहता हूँ। एक नया नोबेल प्राइज हम दे रहे हैं, नोबेल प्राइज फॉर कॉमेडी, वो ट्रंप साहब को दिया जाएगा। जी नमस्ते सर, मेरा सवाल ये है कि 38,000 वर्ग किलोमीटर जो है नेहरू जी थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ये दे दिए चाइना को, तो उसमें हमारा हिंदुओं का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल कैलाश मानसरोवर भी है, तो वो उस पर जो है हमारा सेना का कितना फोकस है, हमारा भारत सरकार का कितना फोकस है, वो वापस आएगा या नहीं? मतलब ये दिल मांगे मोर यहाँ पे शुरू हो गया है कि ये पाकिस्तान में घुस कर मारा, तो अब कह रहे हैं कि चीन, अरे चीन से तो भी बात कर रहे हैं सर। बताइए दुबे सर, आप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, होके आए वहां मैं होके आया हूं, और वो सिचुएशन अभी तो पार्लियामेंट में आपने चर्चा सुनी कि जब चीन को 2000 किलोमीटर जमीन, 38,000 वर्ग नहीं, अभी जो लेटेस्ट जो चर्चा चली थी 2014 के बाद की, तो ऐसा आरोप लगा था कि इतनी जमीन चीन को हमने दे दी और इस पे भारत सरकार चुप है। तो उस पे जो आप जो प्रश्न कह रहे हैं, ये प्रश्न उसका उत्तर बन के आया था, जहां तक मुझे याद है। तो इसमें माननीय गृह मंत्री ने बयान दिया था कि जो भी चीज हमारे सामने हुई है, निश्चित रूप से वो तो हमारी जिम्मेदारी है भाई, हम सरकार में हैं, वो जिम्मेदारी तो हम लेते हैं। लेकिन ये बताइए, जो चीज आपके टाइम में हुई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये प्रश्न उन्होंने काउंटर क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद है, मैंने प्रोसीडिंग उस दिन की देखी थी। कहने का अर्थ है कि अगर आप चाइना पाकिस्तान के रिलेशनशिप को देखें 1947 के बाद, तो बड़ी गंभीर, बड़ी सिग्निफिकेंट चीजें हुई, और वो 60 से पहले हो चुकी थी, 60 से पहले हो चुका था। 62 तो एक क्लाइमैक्स था वार के तौर पे, और वो भी हमारी बहुत बड़ी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक हार मानी गई थी कि वी कुड नॉट सेंस अ वार व्हिच वाज हावरिंग ऑन हेड, हमारे सिर पर वार मंडरा रहा था। और उसी से ठीक पहले हमने चाइनीज लीडरशिप का इतना बड़ा इस्तकबाल किया था भारत के अंदर, और उसके बाद हमारे सामने एक अटैक के फॉर्मेट में आया। और एक बात आपकी सही है कि उस समय एक बड़ा भूभाग चला गया भारत के पास से। लेकिन अगर आप आज की पोस्चरिंग देखिए, तो हम आज बहुत ही मजबूती से इस चीज का सामना कर रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गलवान। आप गलवान के साथ जो 2 कॉन्फ्लिक्ट चाइना से हुआ, चाइना को इसी बात की तकलीफ है, उसको इसी बात की तकलीफ है कि गलवान जैसा काम करके खींच के उनके दांत से हम लेके आए, और चाइना को 2 साल बाद वापस अपनी पोजीशन पे जाना पड़ा। 2 साल तक वो इंतजार करता रहा, यानी उसने टेस्ट किया हमको कि क्या ये भारत वही है? ये भारत वही नहीं है। चाइना वापस गया। और नंबर 2, 13 जुलाई को, अगर आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो हमने 20 किलोमीटर अंदर म्यांमार के अंदर काम किया है, PLA, NSCN-K, और उसके बाद आपको मालूम ही है उल्फा जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है। हम इस पे कहीं आपको बाहर बहुत चर्चा नहीं मिलेगी। ये सिर्फ इन तीनों बैड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ही हमने अटैक नहीं किया है, इसकी चर्चा भी थोड़ा और ऊपर तक गई है, इसलिए कि ये हमारा स्ट्रेटेजिक बफर जोन है, उसको हमने एक्सप्लॉइट किया है। हमने इनडायरेक्टली मैसेज दिया है कि भाई हम यहां तक हैं, आप गलतफहमी में हो, हमको नहीं पता है क्या हो रहा है यहां, हमको पता है यहां क्या हो रहा है। और हमारे ड्रोन और मिसाइल आ करके टेस्टिंग करके पूरा चले गए, और उनके उल्फा के टॉप लीडरशिप की किलिंग्स हुई हैं। ये चीज बहुत चर्चा में है, इसको ऑफिशियली शायद इसमें बहुत आपको बातचीत करने को नहीं मिलेगा। तो आज का भारत और पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने अभी सुना अपने बोरा सर की बात कि उनके जो हथियार हैं मेड इन चाइना, वो क्या एक्सपोज हुए हैं। आज के तारीख में पाकिस्तान गाली दे रहा है कि ये क्या लेके आए तुम, ये तो कुछ चले नहीं। एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद है उनका, उनके एयरक्राफ्ट बर्बाद हैं। मेड इन चाइना कौन खरीदने को तैयार है आज के तारीख में, बताइए। इंडियन मार्केट, इंडियन वेपन, दुनिया में 15 देशों का सप्लाई ऑर्डर ब्रह्मोस के लिए पड़ा हुआ है हमारे पास। ब्रह्मोस खरीदने के लिए 15 कंट्रीज क्यों में है, हमको ब्रह्मोस दो। डिफेंस पार्टनरशिप जर्मनी रत्नागिरी में लगा रहा है रिलायंस के साथ, आप सोच सकते हैं जी। रत्नागिरी में जर्मनी इन्वेस्ट कर रहा है, तो हम आज अलग हैं। हम आज वो नहीं है जो 32,000 किलोमीटर दे चुके थे, आज हम वो हैं कि हमसे 1 इंच लेने के लिए भी किसी भी कंट्री को सोचना पड़ेगा। और ये एग्जाम्पल आपके सामने है।
बहुत आपने अभी शानदार। तो जिक्र ये किया, न्यू मैम, इंडिया है और ये न्यू नॉर्मल है। जी, इन्होंने जिक्र किया कि वो ड्रोन्स गए थे पिछले महीने, ठोका था। सर हमारे थोड़ना थे, हमने मारा था, पर हमारे थोड़ना थे। मैं तो कह रहा हूं सो सर, डिप्लोमेटिकली आपको तुरंत करेक्ट कर दिया गया मैं है। सीधा कह रहा हूं मैडम, हमारे ड्रोन से हमारे थोड़ना थे। कमाल कर रहे हैं, हमने मारा था उनको, हमारे ड्रोन थोड़ना थे। मुझे क्या पता किसके थे, मुझे किसी ने पूछा ही नहीं, मैंने पहले ही कह दिया तू कौन, मैं खामखा, मैं बीच में। बेगानी शादी में क्या कहते हैं, अब्दुल्ला दीवाना। मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं किसके ड्रोन है, मैंने अपने आप कह दिया मेरे नहीं है। अब मेरे थे कि नहीं थे ये तो आपको दुबे साहब बताएंगे, लेकिन ठोका हमने। और क्या संदेश दिया, फाइनली एक संदेश, दलेर मेहंदी का गाना, ओए पंगा ना लेना, पंगा ना लेना, नहीं तो बहुत मारेंगे तुमको। चलिए आप लोग भी अपने सवाल तैयार कर लीजिए। एक सवाल मेरा भी वैभव से है कि ठीक है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने समझा दिया कि भाई युद्ध रोकना क्यों जरूरी था। पॉलिटिशियन समझेंगे नहीं समझेंगे उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, जो भी आपकी स्टडीज हैं जियोपॉलिटिकल अफेयर्स को लेकर, आपको क्या लगता है यहीं रुक जाना ठीक था या थोड़ा और आगे बढ़ सकते थे? देखिए, वॉर में क्या होता है कि वॉर शुरू करना बहुत आसान है, आप वॉर शुरू कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करना कि वो कहां तक जाएगी और उसको रोकना ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे फिर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स किक इन कर जाते हैं जो कि आपके हाथ में नहीं होते हैं। अब जैसे ये जो वॉर थी, आप कहते हैं कि एयर चीफ ने भी कहा कि कुछ लोग कह रहे थे कि थोड़ा और मारना चाहिए था, और ये हमसे भी बहुत लोगों ने कहा है, सर से भी बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, सर आपके भी बहुत लोगों ने कहा होगा कि यार थोड़ा फोर्स के लोगों ने यार ये गलत किया, रोकना नहीं चाहिए था और मारना चाहिए था। देखिए बात वही है कि कितना मारना ये कौन डिसाइड करेगा। आप 140 करोड़ की जनता है इस देश में, उन्होंने वोट दे करके एक इंसान को बिठाया है कि भाई ये डिसाइड करेगा हमारे बिहाफ पे कि हमें किससे लड़ना है, कितना लड़ना है, कितना मारना है। अब वॉर में तो आप सोशल मीडिया पे पोल के हिसाब से तो आप वॉर नहीं चलाएंगे कि भाई आज रोक दें, यस और नो में जवाब दो, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपके पास जो इंटेलिजेंस होती है, आपके पास जो आपके राष्ट्र में अलग अलग एजेंसियां बनी हुई हैं, वो आपको रिपोर्ट देती हैं कि जी इतना डैमेज हुआ है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव था, ये ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो गया, ठीक है। अब सरकार को डिसाइड करना है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप, और हम पाकिस्तान की तरह रोग स्टेट नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ की आर्म्ड फोर्सेस अकाउंटेबल हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी है। आज एयरफोर्स चीफ ने कहा कि लोग बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिना आदमी के जो है वो रिमोट लोकेशन पे बैठ के आप फाइटर जेट ऑपरेट करेंगे। कहते हैं कि आई डोंट सी एनी मशीन गोइंग टू कोर्ट मार्शल रूम, ठीक है। कहते कि यार आप एक आदमी होता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, मैन बिहाइंड द मशीन उसकी अकाउंटेबिलिटी है। तो वो इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो सर्विस चीफ्स हैं, वो पॉलिटिकल लीडरशिप से की बात सुनते हैं, उनसे ऑर्डर्स लेते हैं, वो उनको बताते हैं कि भाई आपको ये कार्य करके देना है, वो डिलीवर करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने वो डिलीवर करके दे दिया कि सर आपका ये ऑब्जेक्टिव था, हमने पूरा कर दिया, अब आगे बताइए क्या करना है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर वो सीज फायर चाह रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है, तो वॉर रोक दी जाए। अब आपका नेबर जैसा भी है, आप अपना नेबर बदल तो नहीं सकते, आप अपना पड़ोसी नहीं चेंज कर सकते, आप अपना घर बदल सकते हो, पड़ोसी चेंज करना आपके हाथ में नहीं है। अब आपको रहना उसके साथ इस रीजन में है, आपने उसको यह संदेश दे दिया है कि तुमने चूंकि कट्टा खरीद लिया है तो अब तुम इस मोहल्ले में दादागिरी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर तुम कट्टा लेके आओगे तो AK-47 हमारे पास भी है। तो ये जो बेसिकली हमारा जो मैसेजिंग थी, वो मैसेजिंग पहुंच गई, और इतिहास में पहली बार हमने पंजाब में, मेनलैंड पंजाब में घुस करके उनको मारा है। आप याद रखिए, हम क्रॉस बॉर्डर रेड्स करते रहे, हम सर्जिकल स्ट्राइक करते रहे, हम उनके बाकी रीजन्स में गए। पाकिस्तान का मतलब लाहौर है, पाकिस्तान का मतलब पंजाब है। अगर हमने पंजाब में मारा है तो हमने अब उनको यह बता दिया कि अब पंजाबी सेफ नहीं। अगर आपको लगता है कि हम पंजाबी जो है हम आतंकवाद करेंगे वहां पे हिंदुस्तान के अंदर, और उसका जो सीज फायर वायलेशन होगी या जो क्रॉस बॉर्डर रेड होगी, उसकी जो कॉस्ट है वो जब POJK में लोग चुकाएंगे, हम सेफ रहेंगे। हमने कहा नहीं, अब आप सेफ नहीं है। हम बहावलपुर, मुरीद के, जैकबाबाद, बलोचिस्तान तक जाकर के हमने ठोका। यानी हमने गिलगित बल्तिस्तान से लेकर के बलोचिस्तान तक एक भी, कहते हैं ना, एक भी कोना, एक भी राज्य पाकिस्तान का ऐसा नहीं था जहां पे हमारी मिसाइलें नहीं गिरी। तो हमने उनसे बोल दिया कि चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा के हो, चाहे बलोचिस्तान के हो, चाहे सिंध के हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे POJK के हो, कहीं के भी होंगे, आप जहां भी होंगे हम आपको मारेंगे। तो पेशावर कैंटोनमेंट और एयरबेस से लेकर के बलोचिस्तान और हर जगह हमारी मिसाइलें पहुंची है। तो ये संदेश देना हमारा काम था, हमने संदेश दे दिया। अब आप राजनीति करना चाहते हैं, आप कहते हैं ना कि हमारे कितने गिरे बताओ, आप सवाल किसके ऊपर उठा रहे हैं? इवेंचुअली सवाल किसके ऊपर उठा रहे हैं? आप अपनी एयरफोर्स के जो फाइटर पायलट्स हैं, आप उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं ना, कि भाई आपके पायलट्स जो है वो इतने इस तरह के हैं कि उनको फाइटर जेट उड़ाने नहीं आता, वो गिर जाते हैं।
जब वॉर आती है तो ये राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं ना इनडायरेक्टली। तो अगर भाई मोदी जी तो फाइटर जेट नहीं उड़ा रहे, अगर मान लेता हूं अगर जेट गिर रहे हैं, मान लिया मैंने राहुल गांधी की बात कि 5 गिर गए हमारे, तो वो किससे गिरे, आप किसके कॉम्पिटेंस पर सवाल उठा रहे हैं? तो राहुल गांधी ये चीजें नहीं सोचते हैं और इसीलिए आप देख लीजिए कि पिछले 3 चुनाव से उनका जो हश्र हो रहा है, ये अगले चुनाव में भी उनको समझ में आ जाएगा अगर इसी तरह से वो सवाल उठाते रहे। चलिए, तो राहुल गांधी के लिए भी आपने बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। देखना ये है, चीफ ने भी समझा दिया है या हमने भी समझा दिया है, लेकिन उनको कितना समझ में आता है ये वो देखेंगे और जाहिर सी बात है वो अपने राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से भी इसको एवेल्युएट करेंगे। लेकिन फिर से आज ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई है और क्योंकि इतनी डिटेल आई है तो हर किसी का सीना फख्र से चौड़ा है। जैसे कि वैभव कह रहे थे कि पंजाब तक हमने दर्द महसूस कराया है, उनके हेडक्वार्टर के करीब में जाके, उनके जो न्यूक्लियर साइट से उनके बिल्कुल करीब में जाके हमने आपकी भाषा में ठोका है एकदम से। हाँ, तो जब इतना अच्छे से हमने प्रिसाइज अटैक कर दिया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान का हवा तो निकली हुई है, कभी चीन भर देता है, कभी अमेरिका भर देता है और आजकल ट्रंप बार बार लंच पे बुला रहे हैं, तो फिर सुधरेगा ये पाकिस्तान? आज तो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के दिन हमने सच्चाई बताई है सबको। देखिए, पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो कुत्ते की कौन सी पूंछ होती है जो टेढ़ी है तो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात एक और चीज आती है, जब हम एक नैरेटिव बनाते हैं अपने देश के अंदर और वो नैरेटिव बनाते हैं कि शायद हमारे इतने जहाज गिर गए, या ये नैरेटिव बनाते हैं कि ट्रंप ने हमको फोर्स किया लड़ाई रुकवाने के लिए, अगर ऐसा नैरेटिव बनाते हैं तो हमारे जो भी लीडरशिप है, एजेंसीज हैं, उनको सच बोलना पड़ता है। जब वो सच बोलते हैं तो जिसके लिए बोल रहे हैं, ट्रंप के लिए बोल रहे हैं ना जी, तो उसको क्या फील होगा? हर्ट होगा, उसकी ईगो क्या होगी? प्रिक होगी। तो क्या करेगा? 25% टैरिफ लगा देगा। यहां पे हमारे ऑपोजिशन या कोई भी दूसरे लीडर्स हैं जो बातचीत करते हैं, सोचते हैं, तो उनको यह जरूर सोचना चाहिए कि अगर आपके नैरेटिव से दुश्मन को फायदा हो रहा है या आपके नैरेटिव से वो सिचुएशन बन रही है जहां भारत के हित में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो मत करिए। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि ट्रंप को लायर बोलो, कहा है ना। अगर ट्रंप को हम लायर बोलते तो आज 100% होता, 50% नहीं होता टैरिफ, 100 भी, और उसके बाद वो कभी बातचीत नहीं करते उसके बाद हमारे साथ। ये सच है कि नहीं है? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो ऑपोजिशन नैरेटिव बनाता है देश के हित में हो। अब आती है बात कि पाकिस्तान को हम कैसे सुधार सकते हैं। उसका एक ही तरीका है और वो है कि पाकिस्तान के जितने जनरल हैं, एक्चुअली पावर तो उनके पास है, पावर इनके पास नहीं है पॉलिटिशियन के पास। शहबाज शरीफ, अगर आप सोच रहे हैं कि वो बोलता है या वो करता है, उनके पास पावर नहीं है। पावर सिर्फ आसिम मुनीर और आसिम मलिक के पास है, और बिकॉज वो उनको कठपुतलियों की तरह नचाते हैं, जो वो चाहते हैं वो होता है, अपने आप को फील्ड मार्शल बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जरूरी है कि उनके मन में भी खौफ हो। आपको मालूम है कि एक भी पाकिस्तानी जनरल वहां नहीं रहता पाकिस्तान में, जो चीफ बनाओ या ISI का चीफ बनाओ, वो हमेशा अमेरिका या दूसरे देशों में, उनके बच्चे भी वहीं होते हैं, पैसा भी वहां ट्रांसफर करता है, वो ड्रग मनी होती है जो वहां पे चली जाती है, जिससे टेररिज्म को किया जाता है फंड। अगर खौफ लाना है पाकिस्तान के अंदर, आतंकवाद को कंप्लीटली बंद करना है, तो मैं आज आपके चैनल के थ्रू आसिम मुनीर को भी बोल रहा हूं, आसिम मलिक को भी बोल रहा हूं, ये रास्ता छोड़ दो। अगली बार अगर ऑप सिंदूर होगा, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें सबसे पहले ठोकेंगे। तो आतंक के आकाओं में और स्टेट एक्टर्स में कोई फर्क नहीं किया जाएगा, ये बहुत अच्छे से समझा दिया गया था और बार बार समझा दिया गया था। देखना है कि समझेंगे कि नहीं समझेंगे। और सर, आपने तो वहां सर्व किया हुआ है दुबे सर, और पाकिस्तान को आप बखूबी जानते हैं, उनके आतंक के मॉड्यूल को अच्छे से जानते हैं। पैसा आ गया है, ट्रंप हवा भर रहा है, तो ऐसे में सुधरेंगे? देखिए, मैं छोटी सी बात थोड़ा और कनेक्ट करूं कि सारी प्रॉब्लम 10 मई के बाद ही क्यों शुरू हुई है, मतलब मेरे दिमाग में सवाल आता है। अच्छा, ट्रंप को 10 मई से पहले जो सिचुएशन थी वो 10 मई के बाद बिल्कुल चेंज हो गई सर, इफ यू एग्री। एब्सोल्युटली। क्योंकि 10 मई की ऐसा तारीख है कि उससे पहले तक ट्रंप को भी उन तमाम बातों का अंदाजा नहीं था जो 7 से लेकर 9 के बीच हुआ है। सीधी बात है। F-16, अभी एक तो F-35 त्रिवेंद्रम में बेचारा धक्का खा रहा, पता नहीं वो शायद कबाड़ी में चला जाएगा, चला गया हो, BR लग जाएगा। आप सोचिए, कबाड़ी वाला लेने आया था, उससे पहले ही उड़ गया। आप सोचिए, F-16 5 तो उधर ही मार गिराए गए, आपको पता ही है।
उसमें आपने पूरा जो कंप्लीट हाउदी वाला अगर पूरा डिटेल आपको पता होगा, तो कुल मिला जुला के F-16, F-35 जब बेचते हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बिलियन डॉलर में एक जहाज बिकता है। हमारे इस ऑपरेशन सिंदूर में F-16, F-35 बहुत सारे लोगों का जो सौदा है ना, जो काउंटर पर फ्रूट की दुकान लगाते थे, वो फुली एक्सपोज हो गया। एक नाराजगी तो वो है। किराना हिल वाली दूसरी नाराजगी है, जैसा कि सर बहुत बार उसको एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। आप गए सरगोधा की कुटाई करने, आपने किराना हिल और लपेट लिया, और किराना हिल इतना एडवर्सली इंपैक्टेड होगा किसी को नहीं पता था। रहीम यार खान तो अभी तक सुधरा ही नहीं है, और बहुत सारे उनके टारमैक में भी टाइम लगेगा। तो अमेरिका ने इन सारी चीजों को एक अपने से कनेक्ट किया है कि इंडिया क्या ऐसी पावर हो सकती है कि आपके पास इतना तगड़ा ईडी सिस्टम है कि आपने अपना नुकसान बचा लिया और आपने पाकिस्तान को राइट अप टू स्कर्डू टू बोलाई तक रगड़ दिया। बोलाई मींस जस्ट कराची के ठीक नीचे, बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर के नजदीक। तो आपने पूरे पाकिस्तान के ऊपर एक नक्शा खींच दिया अपने ब्रह्मास्त्रों का। तो एक चीज ये बड़ी थोड़ी उल्टी गई है। और अभी आपने देखा होगा कि फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में जिस दिन हमने ये अनाउंस किया कि हमारे और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में ट्रंप साहब का कोई योगदान नहीं है, उनका एक भी फोन कॉल नहीं है जिसने हमें प्रॉम्प्ट किया हो हम युद्ध बंद कर दें, उसके बाद दूसरा रिएक्शन हुआ है। यानी उनको हमारे मार्केट में अभी कोई पूछ नहीं रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय अमेरिका के साथ ये हो रखी है। हालांकि एक डिप्लोमेटिक टसेल आया है और 25% आपने हमारे पर और टैरिफ बढ़ा दिया। आप हमको डिक्टेट करेंगे कि पावर सेक्टर में हम रशिया से तेल न लें। मतलब आप सोचिए कितनी बड़ी दादागिरी आज के तारीख में। सारा झगड़ा रशिया से तेल लेने का है, और भारत तेल लेकर के रिफाइन करके एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू द यूरोपियन यूनियन रिफाइंड, इसमें एविएशन तेल टोटल हम देते हैं। ट्रंप का स्टेप कहां जाएगा, आप इसको सोचिए, कितनी बड़ी बात है। और मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान दो नाव में बैठा हुआ है, और पाकिस्तान इतनी बुरी तरह से डूबेगा। चाइना की पॉपुलेशन इस समय परेशान है कि आप इसको J-70 क्यों देते हो, F-70 क्यों, J-70 क्यों देते हो। चाइना इज ऑल्सो नॉट हैप्पी कि इसको क्यों दिया जाता है पाकिस्तान को। और चाइना कभी भी क्या एक्सेप्ट करेगा कि मुनीर रोज टिकट कटा करके वाशिंगटन पहुंचे हैं? चाइना कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये चल रही है बात, ये चल रहा है सिलसिला। तो पाकिस्तान इस समय दो नाव में बैठा हुआ है, ये बैलेंस बिगड़ेगा। अभी तो ब्रिक्स की डिप्लोमेसी सर बताएंगे ज्यादा बेहतर क्या होने जा रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय है पूरे वर्ल्ड में। भारत ने इस समय नचा रखा है सबको, आप समझिए। और भारत चेंज नहीं होगा, स्टेटस बिल्कुल चेंज नहीं करेगा अपना, वो इंतजार करेगा। इंडिया में तो हिंदुस्तान की इसी शक्ति के साथ हमें अब अपने शो को यहां पर रोकना होगा, क्योंकि वक्त का तकाज़ा यही कहता है कि आज हमने ऑपरेशन सिंदूर पर जो चीफ ने कहा उसको हमने अच्छे से समझा, तफसील से जाना, हिंदुस्तान की ताकत के सबूत भी देखे और उन पर चर्चा भी की। आप सभी इस चर्चा में शामिल हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शानदार ऑडियंस का भी जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।